Hello students, welcome to the class. Hope all are doing well. Okay, let us start the class. Today I am going to talk about secondary market. Already we discussed that in previous class we discussed about the primary market. So today we are going to discuss about the secondary market. What is secondary market? So in the name itself we came to know that secondary. Okay, secondary in the sense primary, what we saw in the primary market. Primary market means what? New issue shares. Okay, where the shares are issued first time. Okay, the shares are issued for the first time by the company is known as the primary market. So secondary market means already issued securities. Okay, so the already issued securities को जहाँ पे हम सेल करेंगे या परचेज करेंगे, that is known as the secondary market. Okay, so today we are going to talk about secondary market. So secondary market means nothing but the market for existing securities. The word is very important one. See, market for existing securities. That means what? Existing securities means what? Already issued securities. Okay, already issued securities. So जो already issued securities है, वो issued securities को disinvest करने, in case if anyone want to disinvest or reinvest for the purpose of disinvest and reinvest हम कहाँ जाएंगे? Secondary market पे जाएंगे. Okay, so we can say that it is a platform. The secondary market is the platform where we can easily purchase or sell the existing securities. Or we can say that it provides the liquidity. It provides what? It provides liquidity. Okay, liquidity of securities. That means what? If anyone having securities, okay, for example, I am having securities, but I want to sell the securities. Okay, so if I want to sell the securities, from where I have to go to sell the securities? So it is a क्वेश्चन मार्क, वेयर आई हैव टू गो. सी, हाँ, मैं किसी से जाके डायरेक्टली सेल नहीं कर सकती. सो मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं क्या कर सकूँ अपना शेयर को सेल कर सकता हूँ, अपना सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकूँ जब मुझे कैश का ज़रूरत होगा. सो ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है. दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन कन्वर्ट अवर शेयर्स इनटू कैश. ओके, शेयर मैं अभी सेल करना चाहती हूँ, मुझे कैश का ज़रूरत है, तो मैं क्या कर सकती है? शेयर को यहाँ पे मैं सेल कर सकती हूँ. In case if I am having lot of money to invest, so मैं कहाँ जाऊँ? Securities purchase करना है. So again, if I want to purchase the securities, again I have to go the secondary market to purchase the securities. Okay, so here the secondary market gives liquidity of securities. Okay, so ये secondary market इससे अच्छा मैं और बता देती हूँ. The secondary market is also known as stock exchange, जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, या you might have been heard the word stock exchange. Okay, stock exchange और शेयर मार्केट आप बहुत सुने होंगे, isn't it? न्यूज़ वगैरह में शेयर मार्केट में इन्फ्लेशन फॉल हुआ है, राइज हुआ है, प्राइस राइज हुआ है, प्राइस फॉल हुआ है, ऐसा सब आप सुने होंगे. शेयर मार्केट. सो व्हाट इज शेयर मार्केट या व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ द इंस्टीट्यूशन. स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अगर हम बोलें तो इट इज़ द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. इट इज़ द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. ओके, शेयर मार्केट भी है जहाँ पे शेयर्स को हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, दैट इज नोन एज अ शेयर मार्केट. ओके, सो नाउ यू गॉट इट. व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट? इट इज नथिंग बट इट इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन परचेज और सेल द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. सेकेंडरी मार्केट में ओनली एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को हम परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, stock exchange means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling of securities. So it is nothing but a body of individuals. I think it is nothing but a body of individuals, incorporated or not, constituted. For what purpose it is constituted? It is constituted the purpose of assisting. Stock exchange क्या कर रहा है? Assisting, regulating or controlling. What? Business of buying and selling of securities. So
whenever we are going to sell the securities or whenever we are purchasing the securities, there must be some framework. Okay, so according to the rules and regulations ही हम लोगों को करना होगा for because of to avoid the fraud and other things. Okay, या हम अपने ही आप को जो है बचाने के लिए जब whenever we are investing the money, we know that money is it is valued one. So ये इतना important एक thing जहाँ पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो we have to go according to the rules. Okay, तो इसलिए हमें भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके ही ये जो है प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जो है एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है इनकॉर्पोरेट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, उनको असिस्ट करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना सिक्योरिटीज़ को जब परचेज एंड सेल करेंगे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज एंड secondary market. Now we move on to the difference between primary market and secondary market. Already we discussed the primary market and now हम बता चुकी है कि secondary market क्या है. So हम डिस्कस करते हैं what is the difference between the primary and secondary market. It is also important when क्योंकि sometimes जो है आपका examination point of view जो है ये पूछते हैं. So difference between डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी मार्केट. सो सेकेंडरी एंड प्राइमरी मार्केट हम ऐसा डिवाइड करके देखते हैं, बेसिस, देन प्राइमरी मार्केट, देन सेकेंडरी मार्केट. ओके, बेसिस, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. ओके, सो बेसिक्स में हम ये देखते हैं सिक्योरिटीज. ओके, सिक्योरिटीज, securities. So primary market deals with the fresh securities or new securities. Primary market deals with the new securities. Primary market में हम new securities को ही sell कर सकते हैं. Then secondary market deals with the existing securities. Existing securities. Secondary market deals with the existing securities. Okay. So securities हम on the basis of securities. Primary market deals with the new securities. That is primary market में only new securities को ही हम सेल कर सकते हैं. देन सेकेंडरी मार्केट इज फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. ओके, देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बाइंग एंड सेलिंग. ओके, okay, buying and selling in primary market we can only buy the securities. Okay, only purchase कर सकते हैं securities को हम क्या कर सकते हैं, purchase कर सकते हैं. Here both, that is buying and selling दोनों चलेगा. Okay, buying and selling. So got it. On the basis of buying and selling हम देखेंगे तो प्राइमरी मार्केट ओनली हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं न्यू सिक्योरिटीज को. बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट वी कैन डू बोथ, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग दोनों हम कर सकते हैं. नाउ हम देखते हैं प्राइसिंग. ओके, सो प्राइसिंग कौन करेंगे. सो हियर द प्राइसिंग जो है, हियर द प्राइसिंग दैट इज इन केस ऑफ प्राइमरी मार्केट प्राइसिंग विल बी डन बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. सो प्राइसिंग जो है फैक्टर जो है उन लोग कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में फैक्टर ऑफ द प्राइसिंग इज डिमांड एंड सप्लाई. बट प्राइसिंग सिक्योरिटीज का प्राइसिंग कौन फिक्स करेंगे, प्राइमरी मार्केट में मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी. ओके, जो भी कंपनी न्यू शेयर इश्यू करना चाहते हैं वो कंपनी खुद ही जो है प्राइस जो है फिक्स करेंगे. बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट हम दो फैक्टर को लेके करेंगे, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर को लेके मार्केट में ही, सेकेंडरी मार्केट में ही क्या होगा, प्राइसिंग फिक्स होगा. सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड वन ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो सेकेंडरी मार्केट में हम प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं. ओके, देन कम टू द फोर्थ पॉइंट, कैपिटल फॉर्मेशन. Okay, capital formation में how the market, that is whether it is a primary market or it is a secondary market, दोनों जो है capital formation में किस तरह help कर रहे हैं. Primary market directly, that is primary market helps directly. Okay,
प्राइमरी मार्केट हेल्प्स डायरेक्टली फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली, सेकेंडरी मार्केट क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में न्यू फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स जो है हम लोग सेल कर रहे हैं, तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू, सो वहाँ से हम लोग डायरेक्टली ये किस लिए कर रहे हैं, फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, सो वो कैपिटल फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, टू जो भी जहाँ पे लाइक वेर वी कैन इन्वेस्ट द कैपिटल, जो भी अमाउंट हम लोगों को मिलेगा ऐसा कैपिटल हम क्या करेंगे, ऐसा एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज में हम इन्वेस्ट करेंगे। सो कैपिटल फॉर्मेशन प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली आपको देगा, बट इन सेकेंडरी मार्केट में जो है इनडायरेक्टली होगा, जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल करके वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसको एज कैपिटल फॉर्मेशन, जहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्ट करना होगा, जहाँ पे रिजल्ट अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा जगह पे हम क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। देन हम देखते हैं लोकेशन। सो लोकेशन ऑलरेडी जब हम प्राइमरी मार्केट डिस्कस किए थे तभी मैं बता चुकी थी, प्राइमरी मार्केट देयर इज नो जोग्राफिकल लोकेशन। ओके, नो जोग्राफिकल लोकेशन और फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। सो जितना भी होगा कंपनी जो है नेट बाय इंटरमीडियरी एंड एजेंट के थ्रू ही सेल करते हैं, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट देयर इज अ फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन, फिक्स्ड geographical location is there. So यहाँ पे fixed geographical location is that means stock market, जितना भी stock markets are available, so ये सभी stock markets क्या है, it is a platform, it is a place where we can purchase and sell the securities. एक example आप normally सुने होंगे BSE, क्या है BSE, क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इस तरह जो है बहुत सारा है। टुडे अभी जो है आज तक का जो है 23 नॉर्मल इट इज 23 स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। ओके, सो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन इज देयर, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज इज देयर, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज इज देयर, इस तरह बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है। बट ये क्या है कि समटाइम्स वो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज बाहर भी आ जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि लिस्टेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिस्टेड जो है समटाइम्स लिस्टेड से बाहर भी हो जाते हैं, समटाइम्स आ जाते हैं, दैट इज अगेन वो लिस्टेड हो जाते हैं। सो ये जो है आपका जो है चेंज होते रहेगा, बट एक अकाउंट हम बोलेंगे नियर 23 स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर। ओके, सो जोग्राफिकल लोकेशन प्राइमरी मार्केट में देयर इज नो जोग्राफिकल लोकेशन एंड सेकेंडरी मार्केट देयर इज अ फिक्स्ड है जोग्राफिकल लोकेशन। ओके, तो एंट्री नेक्स्ट हम देखते हैं एंट्री, ये जो हम परचेज एंड सेल कर रहे हैं, एंट्री क्या होगा हियर, एंट्री जो है कोई भी कंपनी जो है सेल कर सकते हैं, लाइक ऑल कंपनीज, वी कैन से दैट ऑल कंपनीज सेल द सिक्योरिटीज, क्योंकि फ्रेश सिक्योरिटीज वी आर नॉट गोइंग टू द सेकेंडरी मार्केट, हम कंपनी जो है इंटरमीडियरीज के थ्रू और जो प्रोसेस में मैंने बताई थी वो प्रोसेस के थ्रू वो सेल कर रहे हैं। सो ऑल companies can come and sell the securities through the primary market, but in case of secondary market only listed companies, secondary markets में कौन होगा, only listed companies can sell the securities in the secondary market. Okay, so this is the difference between primary and secondary market. समझ में आ गया आपको primary and secondary market? Next we move on to the functions of stock exchange or functions of the secondary market. Okay, next is functions of stock exchange. So under the functions of stock exchange, providing liquidity and marketability to existing securities. Then number 2, pricing of securities. Number 3, safety of transaction. Number 4, contributes to economic growth. Number 5, spreading equity cut. Okay, what is providing liquidity and marketability? Liquidity and marketability. Already we discussed that secondary market means it is the place where we can sell the securities of existing securities, sell or purchase the existing securities. So whenever there is a need, जो भी that is by giving chance of is disinvestment and reinvestment. So इन्वेस्टर्स को जो है इजीली कन्वर्ट करना है, देन इजीली कन्वर्ट करना है या इन्वेस्ट करना है। सो ये दोनों कहाँ पे होगा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, दैट्स व्हाई इट सेड दैट लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। सो मार्केटेबिलिटी इन द सेंस
अब जो है इन्वेस्टर्स को इट गिव्स अ चांस टू डिसइन्वेस्ट और इन्वेस्ट। सो ये रेगुलर बेसिस में अगर चलता रहेगा देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, लिक्विडिटी, बोथ लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी इसमें आ जाता है। ओके, लाइक हम सिक्योरिटीज़ को सेल, दोस हु वांट टू सेल द सिक्योरिटीज़ और दोस हु वांट टू परचेज द सिक्योरिटीज़, वो स्टॉक एक्सचेंज में आएंगे, मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में आके क्या कर सकते हैं, सेल सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं। जिसके पास सरप्लस मनी होगा वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इन्वेस्ट करके। जिसके पास सिक्योरिटी इज देयर बट दे वांट टू सेल द सिक्योरिटी, सो आएंगे। सो इस तरह कंटिन्यूसली इस तरह होते रहेगा, देन ऑटोमेटिकली वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी भी जो है ये प्रोवाइड करेगा। ओके, नाउ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑलरेडी हम बोले हैं, डिस्कस किए हैं। Pricing of securities, that is stock exchange provides the platform for pricing of securities. Okay, so pricing of securities, what is the factor? The factor is demand and supply. Okay, so demand and supply factors को लेके, demand and supply factor को लेके हमें देखना होगा। So एक सिक्योरिटीज़ का प्राइसिंग हम तभी, एक प्रोडक्ट का ही आप ले लीजिए, एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग हम कैसे फिक्स करते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, सो वो भी एक फैक्टर है हमारा। सो डिमांड एंड सप्लाई एक फैक्टर को लेके ही हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का प्राइस को फिक्स करते हैं। सेम सिक्योरिटीज़ का भी वही है, फैक्टर को हमें लेना होगा, डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर को लेकर ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का प्राइसिंग फिक्स करते हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज में अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई दे फिक्स द प्राइसेस, or stock exchanges fix the prices. Then safety transactions. So whenever we are doing the transactions of buying and selling in the stock exchange, it is a safety one. It provides safety for the investors. Okay, safety for the investors. Why it provides safety for the investors? Actually, in stock exchange, there is a framework for the stock exchange, like that is like framework in the sense regulations. Okay, the stock exchanges has to follow the rules and regulations. So within the rules and regulations वो अगर काम करेंगे तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स जो है अराइज नहीं होगा। यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा कैसा प्रॉब्लम्स हो सकता है। सिर्फ अगर यहाँ पे सेफ्टी यहाँ पे हम लेंगे तो सेबी के थ्रू, अकॉर्डिंग टू द सेबी, दैट इज सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, फ्रेमवर्क दिए हैं, लाइक यू हैव टू फॉलो द, एवरी स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेनेवर दे आर डीलिंग विद द सिक्योरिटीज बाय वेदर इट इज अ परचेसिंग और इट इज अ सेलिंग। सो दो ऑल द पर्सन दोज हु आर डील्स विद दिस ट्रांसैक्शन और विद दिस ट्रेड, दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। सो व्हाई दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन? सी, जब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सभी जो है अकॉर्डिंग टू जैसा हम चाहते हैं वैसा ही वहाँ पे होगा। इन केस आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड नहीं किया है, सो आप क्या करेंगे, आपके मर्जी से चलेंगे। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स अराइज हो सकता है। सो वैसे ही यहाँ पे सेफ्टी ऑफ ट्रांसैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इंटरमीडियरीज आर देयर। सो समटाइम्स इफ द रूल्स एंड रेगुलेशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द इंटरमीडियरीज, देन वो क्या कर सकते हैं, फ्रैडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो आपको धोखा भी दे सकते हैं, इन्वेस्टर्स को क्या कर सकते हैं, वो धोखा भी दे सकते हैं। सो ये अवॉइड करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है कहाँ से अवॉइड होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जाना होगा। सो वहाँ पे ऐसा कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगा जिसमें आपको जो है कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। सो सेफ्टी ऑफ ट्रांसैक्शन इज हियर, then contributes to economic growth. So definitely stock exchanges plays a very important role in the economic growth of the country. Okay, so कैसा कि because we are with the help of the stock exchange we capital formation हो रहा है। ओके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। सो कोई सेल कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है हो रहा है। सो ये इन्वेस्टमेंट को हम प्रोडक्टिव मैनर में लेके जा रहे हैं। सो व्हेन वी आर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट इनटू द प्रोडक्टिव मैनर, डेफिनेटली क्या हो रहा है, वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो रहा है। सो द स्टॉक एक्सचेंज
exchanges contribute to the economic growth. Okay, then spreading equity cult. Spreading equity cult, what is spreading equity cult? Nothing but the knowledge. Okay, giving knowledge. Okay, so what is giving knowledge? That means if anyone wants to purchase a share, for example मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको शेयर के बारे में. सो नाउ इस शेयर के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है या मुझे मिला हुआ है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन हम क्या नहीं कर सकते, शेयर मार्केट में डायरेक्टली हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही पता है शेयर मार्केट क्या काम कर रहा है, isn't it? हम उतना ही नॉलेज गेन कर रहे हैं क्या, व्हाट इज शेयर मार्केट एंड शेयर मार्केट क्या कर रहा है, शेयर मार्केट का फंक्शन क्या है. बट इफ़ आई वांट टू इन्वेस्ट माय मनी इनटू द शेयर मार्केट, तो मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए. तो ये इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगा? डेफिनेटली फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस. सो स्टॉक एक्सचेंजेस उनको जितना भी इंफॉर्मेशन है ये सारे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट, इनको नॉलेज गेन कराने के लिए, किसको नॉलेज गेन कराने के लिए? इन्वेस्टर्स को नॉलेज गेन कराने के लिए जो कुछ भी उनको करना होगा ये सारा चीज़ वो कर रहे हैं. सो दैट इज स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट. इक्विटी कल्ट मीन्स उनको एजुकेशन दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को, कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आप इन्वेस्ट करेंगे तो कैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी. इस तरह ईच एंड एवरीथिंग वो जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. विद द इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं? नॉलेज गेन करके अवेयरनेस क्रिएट करवा रहे हैं. सो विद द अवेयरनेस हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हम अपना मनी को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं. सो स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या है? स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट. ओके, नॉलेज हमें दे रहे हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, अपना मनी को एक प्रोडक्टिव मैनर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो दिस आर ऑल द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सो इसके अलावा और भी कुछ फंक्शन जैसा लिक्विडिटी ऑलरेडी हम यहाँ पे मिला के बोल चुके हैं. इट इज़ ए इकोनॉमिक पैरामीटर भी हम बोलते हैं. इट इज़ इकोनॉमिक पैरामीटर मीन्स व्हाट, दैट मीन्स मेजरमेंट. एक इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा हो रहा है ये मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में जो राइज एंड फॉल हो रहा है, इसमें क्या है कि बूम एंड रिसेशन साइकिल को हम पता करते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ द बूम एंड रिसेशन साइकिल ऑफ स्टॉक मार्केट वी कैन केम टू नो दैट व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. सो इकोनॉमिक पैरामीटर में इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हम बोल सकते हैं. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स द पैरामीटर टू नो द इकोनॉमी ऑफ द country. Okay, so these are all the functions of stock exchange. I think you understood what I taught here. Okay students, let us move on to the difference between money market and capital market. So money market and capital market, already money market भी हम discuss कर चुके हैं, capital market भी हम discuss कर चुके हैं. So difference between, what is the difference between the two हम देखते हैं. So with the help of first on the basis of meaning में क्या है कि money market deals with the मनी मार्केट क्या डील्स कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म फंड के ऊपर डील कर रहे हैं. सो मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म फंड्स. ओके, मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म फंड्स हम बोल सकते हैं. कैपिटल जो है, कैपिटल मार्केट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए. कैपिटल मार्केट इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड. ओके, सो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जो है यहाँ पे या लॉन्ग टर्म फंड्स जो है होगा. सो यहाँ शॉर्ट टर्म मीन्स पीरियड जो है बहुत ही लेस पीरियड विद इन अ ईयर, यहाँ पे जो है लॉन्ग पीरियड आपको लेगा. ओके, सो पार्टिसिपेंट ऑलरेडी भी डिस्कस. पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? आरबीआई इज दैट, देन कमर्शियल बैंक्स आर देयर, कमर्शियल बैंक्स, then developmental financial institutions okay, institutions are there. So Reserve Bank of India, commercial banks, developmental financial institutions, these are all the participants of money markets. Okay, next हम देखते हैं यहाँ पर भी क्या है, financial institution. कैपिटल मार्केट में financial institution and commercial banks, etc. are the participants of the capital market. Then instrument हम देखते हैं. instruments, what are all the instruments? यहाँ पे हम देखे थे T bills, मनी मार्केट में हम देखे T bills are there, commercial paper, then certificate of deposit हम देखे थे, then call money. So these are all the instruments
दिस आर ऑल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज सिक्योरिटीज, इक्विटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, and bonds. Okay. Okay. The next duration. So duration हम देखेंगे. duration क्या है? less than 1 year. Okay. Duration is what? Less than 1 year. Duration is less than 1 year. So here more than 1 year, because it deals with the medium and long term fund. So period duration जो है long duration होगा, long period तक रहेगा. Liquidity, this is highly liquid one, because why it is highly liquid one? Because it is for short term. So short term period means within a year जो भी बिल्स होगा बिल्स को हम कन्वर्ट करेंगे. सो डेफिनेटली जो है कैश हमें जल्दी ही मिल जाएगा. सो रेडी कैश मार्केट भी हम इसे बोलते हैं. सो इट इज़ अ हाईली लिक्विड वन. फॉर whenever there is a need, some instrument are there which can be discounted with the bank also. So if there is a necessary, it can be discounted with the bank also. That's why it is said as a highly liquid one. So it is not a highly liquid one. इसका जो है liquidity, less liquidity, because it has a less liquidity because of duration. Okay, long period तक जब long period होगा, so long period में if for example if I am having share with me but its maturity period is long period, but I want to sell. So if I want to sell the securities, they have buyer वहाँ पे रहना ज़रूरी है. If there is no buyer to purchase myself, then automatically वहाँ पे क्या नहीं होगा? liquidity नहीं होगा. So that's why it is said it is a less liquid one. So risk factor या safety factor देखेंगे. This is a safe one, again because of the time period, duration. Okay, so within a year है, within a year हमें money मिल जाएगा. So definitely it is a safe one. It is a risk one because इसका period जो है ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन इज अ लॉन्ग वन. सो टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग पीरियड रहेगा तो डेफिनेटली हम ये जो है रिस्की वन रहेगा. सो गॉट इट. सो मीनिंग देखेंगे तो इट डील्स विद द शॉर्ट टर्म फंड्स एंड इट डील्स विद द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. देन पार्टिसिपेंट, मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स आरबी है, कमर्शियल बैंक्स आर देयर, देन LIC इज देयर. देन यहाँ पे देखेंगे तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक्स, देन फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो देयर, इंडिविजुअल पर्सन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं. द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे तो हियर द इंस्ट्रूमेंट टी बिल्स आर देयर, कमर्शियल पेपर्स आर देयर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉल मनी इज देयर. Then here capital market, equity share, debentures and bonds are there. Then duration देखेंगे, money market it is less than 1 year, then capital market more than 1 year. We know that capital market is for long term purpose. Okay, that is medium term and long term fund से deal करते हैं. So definitely medium term and long term means it will take more than a year. Okay. Then risk, liquidity because of less than 1 year, maturity period is very less, so money market is highly liquid one. But in case of capital market it is less liquid one, again because of the time period, duration, long duration की वजह से वो liquidity कम रहता है. Then risk factor हम देखे जाएंगे या safety factor देखा जाएगा तो money market is a safe one, again it is because of the दैट इज टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड शॉर्ट होने की वजह से कैश जो है हमें जो है जल्दी ही मिल जाएगा. बट इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट इट इज़ अ रिस्क वन, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हम करने के बाद भी अगर हमें फॉर सिक्योरिटीज़ हमारे पास है बट हम सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहते हैं, बायर नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. सो दिस आर ऑल द डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट. होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट हियर. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर.